This conference will now be recorded. These all are the points that we mentioned regarding the Azure Active Directory services. And in case of Azure Active Directory services, we have already completed the part of user, group, custom domain, multi-factor authentication, SSPR. What about AD join and AD connect? Yes, already done. AD Okay, join indicator. fine. So we completed the part of AD join and AD connect as well. What Yes. about Azure licenses? Azure license. Yes, we have completed this Azure AD license also. Fine. So I think we are able to move ourselves to Intune portal to understand about how we can implement the services. Is that correct? Yes, yes. Okay, great. So let me help you to understand about the integration between Azure Active Directory and Microsoft Intune portal या फिर आप बोल सकते हैं एंड पॉइंट मैनेजर या एंड पॉइंट जो अपने पास पोर्टल है क्या इनके बीच में कम्युनिकेशन है. So basically this is our Azure. I hope you're able to see my screen, right? Yes, This yes. is Azure AD dashboard and this one is our endpoint.microsoft.com. So you can also say that this is endpoint manager. We have a two different dashboard. We are responsible to take care of the each and every dashboard as per the requirement, as per the client's requirement. मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि इन दोनों में गैप क्या है. So you know that both locations can help you to create a users. If we talk about the users option, so you can find the users management over your endpoint as well as in our Active Directory services. We have option to set up our groups. It will give us option to set up groups from endpoint and as well as by using the Azure Active Directory. Let's talk about licensing. It will give us option to configure licensing. I'm talking about the free trial license. It will give us option of conditional access. It will provide us option to manage SSO. It will provide us option to configure ADFS, and it can also help you to manage our pass-through authentication. Most of security features are available in our Azure Active Directory, but the entire features are also integrated to our endpoint.microsoft.com. Let me help you to understand more about it. If we talk about the legacy dashboard of Intune, legacy dashboard in the sense, अगर हम 6 महीने पुरानी बात करें तो अपने जो Intune है 6 महीने या 1 साल पुरानी बात करें तो जो Intune का पोर्टल है ना, you can get the Intune services using Azure Active Directory. Is that correct? अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, दे एडेड अ न्यू डैशबोर्ड. एडी से इंटीग्रेशन अभी भी है, मींस you are able to create user and provide the licensing using Azure Active Directory services that will reflect on the endpoint manager. But अगर हम थोड़ा सा पहले की बात करें ना, so that time we don't have any endpoint manager tool or endpoint manager dashboard. पहले आपको अगर Intune ओपन करना होता था, we just need to open the Azure Active Directory और उस Azure Active Directory के जरिए ही हम Intune के पोर्टल पे जाते थे MDM और MEM की हेल्प से. But nowadays they establish their own dashboard. Why? Because they are planning to implement lots of services. अभी जो services हैं अपने पास, application management, compliance management, and enrollment process, multiple dashboard, multiple platforms that we are able to enroll with our Intune services. Now they are planning to add SCCM server as well. Not yet, but definitely in few days or in few months we'll get the complete information about the SCCM services. जिसके थ्रू आप अपने ऑन प्रोमाइसेस के सर्विस सर्वर ऑपरेटिंग ऑन प्रोमाइसेस के ऑपरेटिंग सिस्टम application software that you install on on-premises machine, we are able to configure it. We are able to upgrade So, it. my question is that is SSM going to retire then? Sorry. SSM रिटायर्ड होने जा रहा था, इसका मतलब अगर SSM की सर्विसेज अगर इंट्यून पे आ जाएंगे तो. एक्चुअली जो माइक्रोसॉफ्ट की स्ट्रेटजीज हैं अगर हम बात करें तो वो इमीडिएटली कोई ऐसी न्यूज नहीं करते क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उनका बिजनेस है. एससीसीएम के बहुत सारे क्लाइंट वर्ल्ड वाइड हैं, ठीक है, तो ऐसा कोई ओके. न्यूज नहीं आई, बट डेफिनेटली दे आर प्लानिंग टू
रिटायर द SCCM इन्वायरमेंट, ठीक है, बट ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, इसमें भी टाइम लग जाएगा, 3 से 4 साल तक का टाइम लग जाएगा, बिकॉज जस्ट लाइक एज MS ऑफिस, आप देखो ना, एक्सचेंज पहले चलता था, एक्सचेंज को उन्होंने हम्म, अभी तक रिटायर नहीं किया। अगर अब कंपनी चाहती है कि आई डोंट वांट टू मूव आवर सेल्फ टू द क्लाउड, सो वी हैव ऑप्शन टू एस्टैब्लिश आवर एक्सचेंज ऑन ऑन प्रोमाइसेस, अभी भी चल रहा है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये रिटायर हो जाएगा, बट हाँ, मोस्ट ऑफ यूजर विल बी माइग्रेट टू ऑन प्रोमाइसेस SCCM टू Intune SCCM, क्योंकि एज पर माई एक्सपीरियंस मेरे खुद के बहुत सारे क्लाइंट हैं अभी, जो दे आर प्लानिंग टू स्टैब्लिश इंट्यून सर्विसेज, क्योंकि वो आने वाले टाइम पे अपने SCCM इन्वॉल्वमेंट को विद द हेल्प ऑफ इंट्यून ही मैनेज करेंगे। इज दैट ओके? ओके। सो जैसे कोई न्यूज आती है, जब तक हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं रहता, हम लोग उस पर डिस्कस नहीं कर सकते, मीन्स कोई कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकते, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर क्लाइंट, और हम क्लाइंट को जो कन्वे करेंगे, जो मैसेज पास करेंगे, वो जेन्युइन और आपका मीन कहीं ना कहीं प्रूफ वाला होना चाहिए, ऐसे नहीं बोल सकेंगे, राइट? ओके। So यस यस। I think we good with the active directory services जो backbone माना जाता है Intune services के लिए, and we almost completed the entire part। अब जो हमने ये टॉपिक कंप्लीट किए हैं ना AD के पार्ट से रिलेटेड, चाहे वो लाइसेंसिंग की बात करें, चाहे हम अपने AD कनेक्ट या AD ज्वाइन की बात करें, ये सारी सर्विसेज, AD ज्वाइन, AD कनेक्ट, लाइसेंसिंग, these services can help you in case of enrollment process। चाहे आप ऑटो पायलट की बात करो, इंडिविजुअल डिवाइस की बात करें, या फिर आप बल्क एनरोलमेंट की बात करें, सभी के केस में ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी मदद करने वाले हैं। So I'm going to help you to understand, as you know that Microsoft Intune provide us a multiple option to enroll our different platforms। So जो ये रिमोट मैनेजमेंट साइट बोल सकते हैं उसको आप, या रिमोट मैनेजमेंट डैशबोर्ड बोल सकते हैं, इस इंट्यून को, इस एंड पॉइंट को हम रिमोट मैनेजमेंट डैशबोर्ड बोल सकते हैं, राइट? एंड पॉइंट डैशबोर्ड या एंड पॉइंट पोर्टल। So by using the endpoint portal or dashboard, we are able to enroll। सबसे पहला जो ऑप्शन चलता है ना, वो है enrollment process। We are able to enroll our मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो हमारा एंड्रॉयड का वर्जन हो, चाहे वो iOS हो, चाहे वो iMac हो, चाहे वो हमारा क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम हो, all types of enrollment process we are able to perform with the help of Intune। So let's start from the Windows। Most of organization prefer to set up the Windows, but some organization can also establish Mac operating system। Few organization are manage the services with the help of Android, and some operating system which is based on Chrome, and few operating system based on iOS or iPad, and one more operating system they also give us option to enroll our Red Hat based machine, or you can say that Linux based machine। Is that correct? Correct। By using our Microsoft Intune services, हम इनमें से कई सारी डिवाइसेस, प्लेटफॉर्म्स को आसानी से अपने Intune पोर्टल पे एनरोल कर सकते हैं। We good with the enrollment process। So now it's our responsibility, we should know about the procedure। अब इसमें क्या क्या मेथड हम यूज करेंगे to enroll our devices? We have a multiple way to enroll, like as you can say that one is on demand, Okay। it is also categorized in two different parts। Second one is autopilot। हर एक अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मेथड बदल सकते हैं। और एक ऑप्शन आपको मिलेगा बल्क एनरोलमेंट।
So these are all are the options that give us option that help us to enroll the devices. Let's start from the very basic. On demand से start करते हैं हम. In case of on demand, our individual or dedicated machine, we have a two different method to enroll. अपने पास दो मेथड हैं एनरोलमेंट के लिए. एक आप यूजिंग डिस्कवरी यूआरएल and second one is related to the company portal. So can you please help me to understand about these two different methods? What do you think about these 2 points? डिस्कवरी यूआरएल मैंने पहली बार सुना है, और कंपनी पोर्टल का सेम जनरली इनरोल करते हैं, कंपनी पोर्टल इंस्टॉल करते हैं. हाँ, actually the discovery URL is basically applicable for two operating system only. और आने वाले टाइम पे जो भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे डेफिनेटली उसमें डिस्कवरी यूआरएल का हमें आइकॉन मिलेगा, डिस्कवरी यूआरएल का ऑप्शन मिलेगा. The discovery URL can help you to enroll our on-premises device, which is applicable only for Windows 10 and Windows 11 operating system. अगर अपने पास environment में Windows 10 और 11 operating system है, तो we are able to enroll with the help of discovery URL. Company portal, you know that, which is applicable to enroll the other platforms like as Android का कोई आप मोबाइल enroll करना चाहते हैं, iOS enroll करना चाहते हैं, या Mac का कंप्यूटर है कोई उसको enroll करना चाहते हैं, तो that time it will help you. Auto pilot के केस में क्या होता है, you should create the profile and by using the profile we are able to just upload the profile data and you can enroll any kind of platform, चाहे वो Windows हो चाहे वो Mac हो. दोनों के केस में आपको प्रोफाइल के को एडिट करके या प्रोफाइल में चेंजेस करके उसे अपलोड करना होगा. बल्कि इनरोलमेंट में भी बहुत सारे मेथड मिलते हैं, जैसे आपका कंपनी डोमेन के नाम से आप इनरोल कर सकते हैं, एडी ज्वाइन के थ्रू इनरोल कर सकते हैं, एडी कनेक्ट के थ्रू इनरोल कर सकते हैं. एन नंबर ऑफ डिवाइसेस आर अवेलेबल ऑन प्रोमाइसेस. क्लाइंट वांट टू इनरोल मल्टीपल डिवाइसेस ऑन सिंगल क्लिक, सो दिस पर्टिकुलर ऑप्शन कैन हेल्प यू. So I'm going to start enrolling process from the very basic that you can understand about कि कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है, कैसे इस पॉइंट को मैनेज किया जाता है, इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, so let me check our portal. I'm just going to open the portal and let's try to understand about how it works. Portal.office.com, so I'm going to use. Now we are on page of our Microsoft 365 क्योंकि मैंने सेम ही कार्ड का इस्तेमाल करके फ्री ट्रायल अकाउंट यूज करके already purchased 3 different licenses. So what you need to do, meanwhile I'm going to open the Azure Active Directory and using the same email address, let me open the endpoint manager or endpoint dashboard. This is our Azure Active Directory and let's try to open our endpoint management as well. ये दोनों इंटीग्रेटेड है एक दूसरे से, मीन्स जो चेंजेस आप करेंगे एडी में वो आपका रिफ्लेक्ट होगा इंट्यून के पैनल पे, और जो चेंजेस आप इंट्यून के पैनल पे करेंगे इट विल रिफ्लेक्ट टू द एजूर एक्टिव डायरेक्टरी. सो व्हाट आर द सेटअप दैट वी डिड, ओपन द आइडेंटिटी और एजूर एक्टिव डायरेक्टरी का पैनल ओपन कर लेते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट what exactly we have already completed with our Azure Active Directory services, which is considered as an intra-admin. Azure AD का भी नाम ये बदल रहे हैं, now it's a part of intra-admin. ठीक है, so intra just like as an intranet means combination of public IP address and private IP address considered as the intranet. उसी तरीके से Azure AD को इन्होंने चेंज कर दिया है अभी intra-admin के नाम से, which is responsible to take care of our on-premises resources and Azure our portal resources. So let me click on the users and we have already created multiple users with AD synchronization के through भी हमने task perform किए थे. So everything is okay. Most of users are available. See, we are able to find multiple users.
कुछ यूजर ऑन प्रोमाइसेस के हैं, कुछ यूजर हमने खुद से क्रिएट किए हैं. But our responsibility how we can enroll the devices. तो यहाँ पे जाते हैं इंट्यून पे और लेट मी चेक, शायद मैंने कुछ डिवाइसेस इसमें एनरोल की थी. लेट मी फाइंड कि कोई ऑप्शन है. दो डिवाइसेस आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं ऑलरेडी एनरोल. So not an issue. I'm just going to enroll new device, like as how we can manage the device with the help of company portal, and how we can enroll the device with the help of discovery URL. ठीक है. सो जो पहला चैलेंज होता है किसी भी इंट्यून इंजीनियर के लिए, he should know about the entire method, he should know about the entire procedure to enroll any kind of platform to Microsoft Intune. Is that correct? Correct. Can you hear me? Yes, Manju, correct. Hello, Okay, yes, hello. Yes. I can hear you. Please. Okay, okay, okay. Fine. So let's try to understand about the concept. Let's try to understand about the procedure to enroll our devices. किसी भी मेथड का आप इस्तेमाल करो, ठीक है ना. इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप कंपनी पोर्टल ही केवल यूज करो, या फिर यूआरएल के थ्रू यूज करो, या फिर आप व्हाट वी कैन से दैट, या फिर आप बल्क एनरोलमेंट. किसी भी मेथड को आप फॉलो करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले यू मेक श्योर कि आपने सबसे पहले यूजर क्रिएट किया, उस यूजर को ग्रुप में मेंशन किया और ग्रुप के ऊपर आपने लाइसेंस असाइन किया. I think we have already discussed about the license part, right? So in case of license part, uh, mobility plus security E5 to license है, mobility plus security E5 license है, which is help us to, what we can say that, which is help us to enroll the on-premises device. On-premises devices को enroll करने के लिए हम अपने लाइसेंसेस का इस्तेमाल करेंगे. सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसीजर. एक स्टेप देख लेते हैं कि कैसे हम इसको इनरोल कर सकते हैं, कैसे हम अपने ऑन प्रोमाइसेस डिवाइसेस को इनरोल करते हैं. Enroll devices to Intune portal. Prerequisite, it's mandatory for us. We must need to know about the prerequisite कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए. So सबसे पहले you know that create यूजर, वो आप किसी भी मेथड के थ्रू क्रिएट करो. इट्स नॉट मैंडेटरी कि केवल एज्यूर एडी के थ्रू हो. दूसरा ऑप्शन, एक्टिवेट लाइसेंस. एक्टिवेट आर परचेज लाइसेंस जो रिक्वायर्ड है. Okay. नंबर थर्ड, ऑलवेज ट्राई, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना कि वी आर रिस्पॉन्सिबल टू इनरोल मल्टीपल डिवाइसेस. तो डेफिनेटली यू नीड टू प्रोसीड विद ग्रुप. एक एक यूजर के ऊपर लाइसेंस असाइन करना स्टार्ट करेंगे तो इट विल टेक मच टाइम. क्रिएट Okay. ग्रुप एंड ऐड यूजर. जो भी आप यूजर ऐड करना चाहते हैं ना, उन यूजर्स को इसमें अटैच कर दें. नंबर फोर्थ, आई थिंक वी गुड विद दैट. यहाँ तक सब कुछ ओके. चेक यूजर्स लाइसेंस. जो भी लाइसेंस आपने असाइन किए हैं, चाहे वो ग्रुप में लाइसेंस असाइन किए हैं या फिर पर्टिकुलर यूजर में लाइसेंस असाइन किए हैं, चेक लाइसेंसेस. दैट्स इट. ये अपने पास प्री रिक्विजिट है और फिर हम इन्हें यूजर्स का इस्तेमाल करके वी विल इनरोल्ड अवर ऑन प्रीमाइसेस डिवाइस. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कंपनी, विद द हेल्प ऑफ डिस्कवरी यूआरएल, कैसे किसी ऑन प्रीमाइसेस डिवाइस को हम इनरोल करते हैं. ठीक है. Okay. चलो, तो पहले ये स्टेप फॉलो कर लेते हैं. बैक टू द Azure रेडी पैनल. जो यूजर की नीड नहीं है हमारे, वो आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट इट एंड विल क्रिएट अ फ्रेश यूजर. एक नया यूजर यहाँ पे क्रिएट करके और फिर उनको इनरोल करने का काम करेंगे. ये जो टाटा वाला जो यूजर था, इस पे पहले से लाइसेंस है, तो इसको कर सकते हैं डायरेक्टली. हाँ, स्टेप देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा. ओके, ओके.
सो फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू क्रिएट टू डिफरेंट यूजर, दो अलग अलग यूजर को यहाँ पे इनरोल करने का काम करते हैं. टेलनेट एक यूजर बना लेते हैं विच इज एसोसिएटेड विद teachmecloud.net. Display name is also telnet. Let me create my own password or proceed to next. No need to make any changes here. Let's create a user Tata telnet और एक यूजर और बना देते हैं टाटा यूजर के नाम से. Again, display name you should provide the same display name and I'm going to use my own password. Next. ये हो गया अपने पास दो यूजर हमने तैयार किए. अभी हम दो के बारे में बात करेंगे and then proceed for the next step. सेकेंड स्टेप में क्या होता है, वी जस्ट नीड टू क्रिएट वन ग्रुप. यूजर्स हमारे रेडी हो चुके हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन द ग्रुप एंड लेट्स क्रिएट अ ग्रुप. Security group. We have two different types of group. Any idea about the types of group? No idea. In on-premises AD and in Azure AD, we are able to find two different types of group. एक ग्रुप होता है सिक्योरिटी का, दूसरा ग्रुप होता है Microsoft 365 का. Okay. If you want to manage the permission, if you want to share any services to our multiple users, what you need to do? You need to create security. If you want to share the mailboxes, distributed list, shared mailbox, या आप Office 365 से रिलेटेड कोई सर्विसेज चेंज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने मल्टीपल यूजर्स के लिए, सो दैट टाइम यू ऑलवेज प्रोसीड विद Microsoft 365 ग्रुप. बट अभी हम लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अभी हम कोई परमिशंस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सो दैट्स व्हाई प्रोसीड विद सिक्योरिटी ग्रुप. आई एम गोइंग टू टाइप ग्रुप इन ट्यून. ठीक है, नाम दे दिया हमने यहाँ पे ग्रुप इन ट्यून. We are able to find multiple options. Honor, do you want to make any honor? Honor in the sense जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा यूजर्स को मॉडिफाई करने. Okay. लाइक किसी यूजर को ऐड करना है, किसी यूजर को रिमूव करना है, या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो वो ऑनर कर पाएगा. एंड नेक्स्ट अगले ऑप्शन की बात करें तो वी आर एबल टू फाइंड मेंबर्स. अगर आप किसी को ऑनरशिप नहीं देना चाहते हैं, अगर आप किसी को ऑनरशिपिंग नहीं प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, तो यू जस्ट नीड टू ऑथराइज अवर रूट अकाउंट. जो हमारा जो अकाउंट हमने लॉगिन किया है उसी यूजर को हम ऑथराइज कर देना चाहते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑल. दिस इज द मेंबर आइकॉन. सो जितने भी यूजर्स आप यूज करना चाहते हैं टू मैनेज अवर इंट्यून एनरोलमेंट, आप उन यूजर को यहाँ पे मेंशन कर दो. टेलनेट एक यूजर हो गया और टाटा दूसरा यूजर हो गया. दो यूजर अभी के लिए हम ऐड कर रहे हैं और इन्हीं दो यूजर को इस्तेमाल करेंगे टू एनरोल आवर ऑन डिवाइसेस. डन. ये पहला स्टेप हुआ. वी जस्ट कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट. वी जस्ट कंप्लीटेड द फर्स्ट स्टेप. नाउ इट्स टाइम टू मूव आपने आवरसेल्व्स टू बताया नेक्स्ट. आपने बताया कि ऑफिस 365 का जो यूजर है वो किस लिए बनाते हैं. आपने बताया कि दो टाइप के यूजर बनते हैं, एक तो सिक्योरिटी यूजर और एक ग्रुप 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 365 ग्रुप यूजर. ग्रुप ग्रुप. ओ सॉरी, ग्रुप. ओके, ग्रुप. यस. तो हम सेकंड वाला ग्रुप जो O365 वाला ग्रुप किस लिए बनाते हैं, मतलब किस पर्पज से बनाते हैं, किसी सर्विसेज को. ऑफिस 365, ठीक, ऑफिस 365 से रिलेटेड अगर आप कोई सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं लाइक डीएल डिस्ट्रीब्यूटेड लिस्ट, या आप शेयर्ड मेल बॉक्स को मल्टीपल शेयर्ड मेल बॉक्स का एक मेल बॉक्स बनाना चाहते हैं जिसके अंदर आप मल्टीपल यूजर ऐड करना चाहते हैं, सो दैट टाइम द Microsoft 365 ग्रुप कम इनटू द. ओके, थैंक यू. परमिशन शेयर करनी है, कोई सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करनी है, लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट करना है, पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ऑलवेज प्रीफर द सिक्योरिटी. आपको हमेशा सिक्योरिटी ग्रुप की
तरफ जाना चाहिए या सिक्योरिटी ग्रुप का आप इस्तेमाल करें. इज दैट क्लियर? Yes, clear. Great. So we successfully added the users to our group. अभी हमने जो यूजर थे उनको अपने ग्रुप में ऐड कर लिया है. आई थिंक एवरीथिंग इज ओके. अभी तक सब कुछ ओके है. अब we must need to assign the license because without license आप कोई भी enrollment process नहीं कर पाएंगे. सिंपल था. Okay. So I'm just going back to the billing part जहाँ पे licensing का ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा. और लाइसेंस के पैनल पे you just need to click all products. All products में जाकर के you can verify the how many licenses that you have. So licenses कई सारे हो सकते हैं. Licenses कई सारे multiple हो सकते हैं. So what you need to do, हमें वो लाइसेंस सेलेक्ट करना है जिस लाइसेंस के जरिए आप Intune की सर्विसेज को मैनेज करते हैं. We just need to click on security E5 enterprise mobility plus security E5. ऑलरेडी 2 यूजर के ऊपर अप्लाई कर दिया है. आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन असाइन. असाइन पे क्लिक करने के बाद आई डोंट वांट टू एक्टिवेट इट फॉर पर्टिकुलर यूजर. आई एम गोइंग टू एक्टिवेट फॉर द एंटायर यूजर्स. दोज ऑल आर पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप. तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड यूजर एंड ग्रुप्स के अंदर. वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन सेलेक्ट योर यूजर, सेलेक्ट योर ग्रुप, सॉरी ग्रुप हाइफन इंट्यून. ये हमने अभी जस्ट क्रिएट किया. ग्रुप हाइफन इंट्यून. सेलेक्ट योर ग्रुप एंड असाइन. हमने अपना लाइसेंस सक्सेसफुली अपने ग्रुप को असाइन कर दिया. और ग्रुप के अंदर वी ऑलरेडी एडेड 2 डिफरेंट. ग्रुप के अंदर हमने 2 यूजर ऐड कर रखे. या जितने भी यूजर इन फ्यूचर ऐड करेंगे ना, ये इसी ग्रुप से लाइसेंस को उठाता जाएगा. Okay. हमें जितने भी यूजर्स क्रिएट करने हैं, जितने भी यूजर्स असाइन करने हैं एनरोलमेंट प्रोसेस के लिए ना, वी जस्ट नीड टू मेक इट मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप. हमें उस अपने ग्रुप में ऐड करते जाएंगे. वो अपने आप इसको मैनेज करता है. इज दैट क्लियर? Yes, clear. Clear. चलो बैक आ जाते हैं. एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या स्टेटस है अपने पास ग्रुप का. सो बैक टू द ग्रुप प्रॉपर्टीज. अभी हम आ जाते हैं ग्रुप की प्रॉपर्टीज पे एंड आइडेंटिफाई द लाइसेंस. Select and open your group properties and go to the licenses. Under the licenses we are able to find कि एक लाइसेंस आपने असाइन कर दिया है इसमें. एंड इंटायर सर्विसेज 10/10 का मतलब है कि इस पर्टिकुलर लाइसेंस के अंदर 10 सर्विसेज हैं और आपने 10 पूरी की पूरी 10 सर्विसेज को इस्तेमाल कर दिया. Okay. इज दैट ओके? Okay. Now same license are applicable for same license is applicable for the entire users. जितने भी लाइसेंस आप जितने भी यूजर्स इसके अंदर ऐड किए ना, उन सभी यूजर की प्रॉपर्टीज अगर आप देखेंगे तो ये लाइसेंस अप्लीकेबल हो गया. ठीक है. वी एडेड द यूजर्स इनटू पर्टिकुलर ग्रुप. तो जितने भी मेंबर होंगे उन सभी के अंदर लाइसेंस मिलना चाहिए. बैक टू द लाइसेंस आइकॉन ऑफ आवर यूजर्स प्रॉपर्टीज. ठीक है. एक हमें लाइसेंस दिखाई पड़ गया इनहेरिटेड ग्रुप इंट्यून. मतलब जो लाइसेंस आपने ग्रुप के ऊपर अप्लीकेबल किया है विच इज अप्लीकेबल फॉर अवर यूजर्स. आपका एक्टिविटी एवरीथिंग इज ओके. नो नीड टू डू एनीथिंग. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू. यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट प्लीज? No, no question. ठीक है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लेट मी कनेक्ट माय विंडोज मशीन जो एक बेस मशीन है. इट्स नॉट अ वर्चुअल मशीन. ये इसका हम RDP एक्सेस कर लेते हैं. दिस इज माय बेस मशीन रनिंग विद विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम. एक विंडोज 10 भी मशीन है. वी विल ऐड द विंडोज 11 मशीन एज वेल. दिस इज आवर विंडोज 10 मशीन, विंडोज 11. और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? लेट्स ट्राई टू ऐड, लेट्स ट्राई टू enroll our Windows 11 machine with Microsoft Intune service. हम इसको enroll करने की कोशिश करते हैं अपने बेस मशीन using Discovery URL, not any tool. I'm not going to use any tool. Just need to use the Discovery URL.
ये अपने पास इंट्यून का पोर्टल हो गया और ये ऑन प्रोमाइसेस मशीन एजेंडा हम लोगों का क्लियर है कि हम इसको ऐड करना चाहते हैं। ऐड मीन्स इनरोल करना चाहते हैं, तो वी कैन डू दैट। वी जस्ट नीड टू बैक और वेरीफाई करो कि जो यूजर आपने क्रिएट किया था ना उसका पासवर्ड आप रिसेट कर लो सबसे पहले। तो वी क्रिएटेड टू डिफरेंट यूजर, सो आई एम गोइंग टू यूज टेलनेट यूजर portal.office.com. We just need to reset the password because as per the policy, first login पे आपको पासवर्ड रिप्लेस करना पड़ेगा reachmecloud.net। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये हमें टेम्परेरी पासवर्ड देता है, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल टू चेंज इट। We successfully reset the password. What you need to do? Let's back to the on-premises machine. ग्रुप वगैरह सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड कर रखी है, तो ऐसे कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। तो वी सक्सेसफुली प्रोवाइडेड द प्रीरिक्विजिट। अब नाउ वी जस्ट नीड टू enroll the device on premises device। बैक टू विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम या जो भी आप इनरोल करना चाहते हैं, बहुत ही बेसिक सा स्टेप आपको फॉलो करना है। व्हाट यू नीड टू डू, राइट क्लिक ऑन स्टार्ट मेनू, go to the setting and click on account icons। this is the discovery URL method। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है एक्सेस वर्कर स्कूल, वी जस्ट नीड टू क्लिक हियर। और अनफॉर्चुनेटली आई हैव ऑलरेडी एडेड विद एनी अदर अकाउंट, सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट। ये दूसरा अकाउंट था, आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव। रिक्वायर्ड रीस्टार्ट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक बार इसको रीस्टार्ट कर देते हैं, हार्डली इट विल टेक टाइम 10 to 15 seconds। We successfully added our instance, means RDP of our physical machine। Let's try to enroll it। अभी हम इसको enroll करने की कोशिश करें। Right click on start menu, just need to click setting and it will redirect you on the page of accounts। और यहाँ पे वर्कर स्कूल। नाउ राइट पैनल पे आप देखो बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं। add or remove provisioning package, export your management logs file, set up an account for taking test, and last option दिखाई पड़ रहा है enroll only in device। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, enrollment करना है। so we just need to proceed with enrollment। आप सिंपल सा enrollment पे क्लिक करेंगे, type the name of your user
तो telnet at teachmecloud.net, सिंपल सा आप ये यूजर आईडी प्रोवाइड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे. It will ask you the company. It will ask you one discovery URL. ये आपसे एक discovery URL के बारे में पूछेगा. Can you please provide me the discovery URL? So what you need to do? Back to Intune portal और वहाँ से हम कॉपी करते हैं discovery URL. तो जो discovery URL है ना, you can find from anywhere. आप विंडोज पे जाओ, यहाँ पे विंडोज आइकन दिखाई पड़ रहा है, विंडोज पे जाओ, एनरोलमेंट पे जाओ, और एनरोलमेंट पे जाने के बाद ऑटोमेटिक एनरोल पे जाओगे और इट विल प्रोवाइड यू द डिस्कवरी यूआरएल. ये पहला मेथड है. यहाँ पे देखो MDM डिस्कवरी यूआरएल ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है सेकंड ऑप्शन पे. यू जस्ट नीड टू कॉपी द यूआरएल और जाकर के अपने बेस मशीन पे पेस्ट कर दो. इज दैट ओके? ओके. सेम यूआरएल यू कैन फाइंड फ्रॉम द एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी, वो भी हम देख लेंगे अभी. बट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट हियर. Done. We successfully paste the URL. And now it's time to proceed for enrollment. Next. Now you need to provide the password and details. Telnet. अब आप इस पे पासवर्ड प्रोवाइड करें. All set. We successfully enroll our devices, but थोड़ा सा टाइम लगता है enrollment process के लिए. चलिए इसको करते हैं click here and let's try to synchronize it. Select, go to the info और यहाँ पे इसको थोड़ा सा synchronize कर दीजिए. ओके. Click synchronize. Everything is okay, but अभी भी हमारी डिवाइस यहाँ पे let's try to check क्या यहाँ पे कोई विंडोज की मशीन अभी आई. ये पुरानी मशीन है which is the old one and we have to wait. देखते हैं विंडोज में कितनी मशीनें अभी अवेलेबल है. Only one virtual machine, Windows 10 virtual machine, physical machine is available. लेकिन ये जो इनरोलमेंट हुआ है ये 22 जुलाई, उसके बाद से कोई एनरोलमेंट नहीं. तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे. मीनवाइल प्लीज गो थ्रू द पॉइंट्स दैट वी डिस्कस. अब एक बार गो थ्रू कर लो कि एनरोलमेंट प्रोसेस के लिए ऑन डिमांड या डेडिकेटेड मशीन को एनरोल करने के लिए क्या स्टेप या क्या प्रीरेक्विजिट होता है. कोई भी डिवाइस कब इनरोल हुई है उसको हम लास्ट चेक इन ऑप्शन से देख सकते हैं क्या? हाँ यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे चेक करते हैं.
तो इस एनरोलमेंट को करने के लिए क्या कोई पोर्ट जैसे कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे नेटवर्क टीम ने कोई पोर्ट ब्लॉक किए हुए हैं, तो कौन सा कोई पोर्ट है जो अलाउ करना इम्पोर्टेंट है या फिर हो जाएगा? क्योंकि नहीं नहीं, इसके लिए कोई क्योंकि आप क्रेडेंशियल दे रहे हो। पोर्ट की मोस्टली ज्यादातर रिक्वायरमेंट ये होती, कर्बरोज हर जगह पे ऑन रहता है। Kerberos protocol is basically applicable to enroll the devices, right? तो लगभग अगर आपका इन्वायरमेंट डोमेन का है या क्लाइंट का है, मीन्स वर्क ग्रुप का है या डोमेन इनरोल डिवाइसेस है, डोमेन एडेड डिवाइसेस है, तो Kerberos पोर्ट सबके लिए applicable रहता है। तो आई डोंट थिंक कि कोई फायरवॉल में चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी फॉर द एनरोलमेंट पर्पज। क्योंकि कुछ वीडीआई मशीनें ऐसी हैं जो जिनके ऊपर अगर हम इनरोल करते हैं ना, तो वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है इंट्यून से, इनरोलमेंट नहीं, नहीं हो पा रहा है। वीडीआई के केस में जो है आप अदर लेयर यूज कर रहे हैं। वीडीआई के केस में या तो आपका सिट्रिक्स वीडीआई होगा, या तो होराइजन होगा VMware का, या तो फिर Azure का होगा। इज दैट करेक्ट? यस, अजोर अजोर है। Azure AVD का है, राइट? यस यस। तो Azure AVD के लिए आपको जो NSG है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है उस वर्चुअल मशीन का, या उस सबनेट का जो NSG है, उसमें आपको पोर्ट को एडिटिंग करना पड़ेगा। क्योंकि क्लाउड पे जब आप सर्विसेज परचेज करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक इनबाउंड पोर्ट मिलता है, विच इज 3389, दैट्स इट। और वो भी हटा दिया जाता है अगर आप इंस्टेंस को एक्सेस कर रहे हो यूजिंग बैस्टियन से। अगर आप यूज कर रहे हो तो वो भी पोर्ट हटा दिया जाता है। ओके, ये समझ नहीं आया मेरे को आपने जो ये एक्सप्लेन किया वीडीआई के लिए, कि कौन से पोर्ट अलाउ करना इम्पोर्टेंट है वीडीआई को इनरोल करने के लिए। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। हाँ जब हाँ। आप एज्यूर पे VM बनाते हो, चाहे वो नॉर्मल वर्चुअल मशीन क्रिएट करो या फिर एवीडी के थ्रू वर्चुअल मशीन क्रिएट करो, ठीक एवीडी है। का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पहले आप VNet बनाते हो, इज दैट करेक्ट? ओके। राइट? या फिर हाँ, राइट। VPN बनाओगे तब भी VNet आएगा, या फिर AAD का ही इस्तेमाल करोगे। इसमें आप एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी को अटैच करते हो, ओके। एज्यूर AD ऐड होता है, एज्यूर AD अटैच होता है AVD होस्ट को। और AVD होस्ट पूल के अंदर आप डिसाइड करते हो इंस्टेंसेस, मतलब वर्चुअल मशीन। और AVD वर्चुअल मशीन के अंदर आप यूज करते हो सेशन, कितने नंबर ऑफ यूजर एट अ टाइम एक्सेस करना है। चलो चलो, ओके। सिंगल सेशन वीडीआई एंड मल्टी सेशन वीडीआई वो जो बोलते हैं ना। हाँ, दो होते हैं ना, एक पर्सनल होता है, एक पूल्ड होता है। तो कंपनी क्या अच्छा करती अच्छा। है, जाहिर सी बात है, हम कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं, कॉस्ट को थोड़ा सा सेव करना चाहते हैं, तभी VDI का मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप मल्टीपल सेशन एक्सेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली नंबर ऑफ यूजर्स आपको AD में क्रिएट करना पड़ेगा, उस यूजर को यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा, विच इज सेपरेट पार्ट। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि जो इंस्टेंसेस हमारे होते हैं, जो हमारे AVD में इंस्टेंसेस होते हैं, जो AVD इंस्टेंसेस होते हैं, उनको इनरोल करने में यस मे बी इश्यूज हो सकते हैं, मे बी प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों ऐसा इश्यूज होता है, क्यों ऐसी प्रॉब्लम होती है? बिकॉज ये जो VNet है ना, इसमें एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप की सर्विस होती है, जिसको हम NSG बोलते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। इसको वर्चुअल फायरवॉल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? अब ये वर्चुअल फायरवॉल क्या करता है, ये वर्चुअल फायरवॉल क्या करता है, ये आपके इनबाउंड और आउटबाउंड की सर्विसेज को, इनबाउंड एंड आउटबाउंड सर्विसेज को मैनेज करने का काम करता ओके। है। इनबाउंड का मतलब, इफ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द सर्विसेज टू आउटसाइड द नेटवर्क, आप इनबाउंड कराएंगे। इफ यू वांट टू एक्सेस द सर्विसेज, देन आउटबाउंड कराएंगे। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? यस यस। ठीक है, तो मतलब ये है कॉन्सेप्ट, सिंपल सा। अगर आपने कोई इंस्टेंस बनाया, मान लीजिए आपने कोई इंस्टेंस बनाया AVD के अंदर, फ्रॉम VM बोल रहे हैं,
अगर आप इस वर्चुअल मशीन का आरडीपी अपने पर्सनल लैपटॉप से लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 3389 पोर्ट को मैनुअल ऐड करेंगे, आरडीपी पोर्ट को मैनुअल ऐड करेंगे, कहाँ पे, इनबाउंड पे, ओके देन यू आर एबल टू एक्सेस इट। ठीक है, तो ठीक है जो इंस्टेंस होता है जब आप इसको किसी प्लेटफॉर्म से इनरोल करते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंट्यून से, जब आप इनरोल तो इंट्यून क्या हो गया, हमारा अदर प्लेटफॉर्म हो गया। नो मैटर बोथ आर अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, बट वो इसके लिए अदर प्लेटफॉर्म ही माना जाएगा। अब इस केस में यू वांट टू एक्सेस दिस मशीन टू इंट्यून पैनल, तो अब आपका बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट ब्लॉक रहते हैं, ओके बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट ब्लॉक रहते हैं इनबाउंड के केस में, एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इनबाउंड पोर्ट में वो सभी प्रीरिक्विजिट को फाइंड करिए जो रिक्वायर्ड है। क्या भरना है हमें इसमें, HTTPS, HTTP 135 एंड 88, ओके 80, 88, 135 और 443, 443, ये हो गया आपका HTTP के लिए, ये हो गया आपका कर्बरोज के लिए, कर्बरोज इन UDP, ये ओके हो गया अगेन कर्बरोज के लिए, कर्बरोज इन TCP, और ये हो गया आपका HTTP। आप ये तीनों पोर्ट्स, ये चारों पोर्ट्स आप इसमें मेंशन कर दो, विद इन सेकेंड आपकी कि मशीन जो डिवाइस पे हो वो इनरोल। इज दैट क्लियर? ओके अगर ये पोर्ट ओपन रखे तो हम कर सकते हैं फिर इनरोल हाँ, अगर एवीडी की वर्चुअल मशीन आपको ऐड करनी है तो। ओके ये इनबाउंड की पोर्ट है या फिर ओके इनबाउंड की पोर्ट होंगे इनबाउंड, या NST इनबाउंड। ओके चलो एक बार रिफ्रेश करते हैं, मे बी वी आर एबल टू फाइंड द वर्चुअल मशीन, सॉरी कंप्यूटर टू ऑन प्रेमाइसेस। We are able to find our on-premises machine successfully enrolled to Microsoft Intune portal. ओके This is desktop P0HAKGE something, और ये इसको एनरोल किया अभी 25/7, और यहाँ पे देखो ये यूजर कौन सा है, विच इज टैलेंट टेलेंट यूजर के थ्रू हमने इसको एनरोल किया। इज दैट क्लियर? क्लियर ओके अभी जो हमने एनरोलमेंट प्रोसेस किया है बेसिकली विच इज रिलेटेड टू द, अभी जो हमने प्रोसेस एनरोल किया है किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ डिस्कवरी यूआरएल यूआरएल, डिस्कवरी ओके यूआरएल। ठीक है, अब हम ओके सेम डिवाइस को माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल के ऊपर कैसे एनरोल कर सकते हैं, यूजिंग कंपनी कोड। ओके ठीक है, by using both way we are able to enroll our device to Microsoft Intune। Is that clear? क्लियर पहला जो चैलेंज होता है किसी भी इंट्यून इंजीनियर के लिए कि हमें सारे पोर्टल्स आने चाहिए, सॉरी सारी डिवाइसेस आनी चाहिए टू एनरोल। ओके विंडोज ऐड कर लिया, मैक ऐड करना है हमें, सबसे ज़्यादा चैलेंज उसी में आता है, एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल टू एनरोल द एंड्रॉयड डिवाइसेस। इज दैट क्लियर? क्लियर यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट अभी तक? नहीं अभी तक तो कोई डाउट नहीं बट मैंने एक ठीक भी है। देखा कि मैक के केस में कि जब हम मैक इनरोल करते हैं तो जब हम ऐसे मोबाइल इनरोल करते हैं ना ऐसे ही मैक इनरोल करते हैं सॉरी, मैक के केस में मैंने देखा कि मैक को जब मैकबुक को हम इनरोल करते हैं तो जैसे हम आईओएस मोबाइल इनरोल करते हैं इंट्यून के अंदर सेम प्रोसीजर होता है उसका भी मैक के लिए मैक के केस में सेम प्रोसीजर नहीं होता, उसमें कंपनी पोर्टल का यूज करेंगे ना। अच्छा है पहले कंपनी पोर्टल इंस्टॉल करते हैं और फिर उसमें लॉगिन करते हैं तो फिर वो इस हाँ, टाइप से वो वही सेटिंग्स वो डिस्कवरी यूआरएल को सपोर्ट ही नहीं करता।
ओके 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 मजीद, ओके गो अहेड प्लीज। ठीक है, तो ये हो गया एनरोलमेंट प्रोसेस फॉर द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग द डिस्कवरी यूआरएल। एंड नाउ इट्स टाइम टू वी नीड टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट हाउ टू एनरोल अवर मैक डिवाइसेस। तो मैक डिवाइस हम कल कर लें। ओके, कल कर लें। बट विंडोज में ये जो आपने यूआरएल से बताया, कंपनी पोर्टल से भी कर सकते हैं ना, कंपनी पोर्टल इंस्टॉल करके और बाद में क्योंकि डेफिनेटली आपने वो तो मेंशन। कॉमन, वो तो कॉमन है ही है, ओके वो तो ऑप्शन है ही है अपने पास टू एनरोल। ओके देन डन ओके। तो हम कल कंपनी पोर्टल से करेंगे विंडोज में। विंडोज में, चलो विंडोज का भी देख लेंगे, वैसे कल हम प्लान कर रहे हैं कि मैक का एनरोल करके देखें। अच्छा, क्योंकि एक बार पहले विंडोज का कर लेते फिर बाद में मैक पे आते हैं। ठीक है, ठीक है, इट विल याद हार्डली रहे। टेक 15 to 20 मिनट, तो वो हम कंप्लीट करने के बाद विंडोज मैक डन। ओके डन, थैंक यू। चलो आई सेंड यू द रिकॉर्डिंग जैसे कंप्लीट होती है, और कल मिलते हैं सेम टाइम 12 o'clock और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट। ठीक है, ओके बाय बाय, थैंक टेक यू। केयर, बाय बाय।